Hello students, today we will discuss about the planning. First of all, discussing the planning chapter. This is the fourth unit of your syllabus. I want to say something about this. There are five main functions of management: planning, organizing, staffing, directing, control. It's called POSDC, five functions of management. Without any function, no task will be completed. So every function is very important to get the task successfully completed. So first of all, planning. Planning means what to do, how to do, when to do. It means thinking in advance. What you want to do, who will do it, how will done, how it will be done, what is to be done, why it is to be done, where it is to be done, and by and when it is to be done. All the things relating to the task, that is thinking in advance, is known as planning. Planning एक ये भी कह सकते हैं कि whatever you are thinking, that is idea get planned and get activated. Idea of, then think about that idea that is planned, and then action, what you think to get the idea completed, that is action. Idea, plan and action. So planning क्या हुआ? Plan means ahead. Planning means thinking beforehand. Planning is chalk out plans of action. Now, how, whom, when, where, all the things are related to planning. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसने करना है, क्यों करना है, everything you have to be done with the help of planning. So planning means, in planning we discuss, in this PDF we discuss about the importance, features and limitations, and the rest of the part of this planning syllabus will be in next PDF, that is process and types. So first of all, we understand the planning meaning. Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. In simple words, we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. हम कहाँ पे आज किस पोजीशन पे हैं और किस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, इस दोनों का गैप कौन पूरा कर रहा है? प्लानिंग. फॉर एग्जाम्पल, आज आपने डिसाइड किया कि मैंने प्लानिंग चैप्टर 100% पूरा करना है. आज डिसाइड किया है, दैट इज प्रेजेंट पोजीशन. आपने इसका 100% अंडरस्टैंडिंग करना है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, क्योंकि आप पहले नहीं कर पाए 3 यूनिट. आज से मैंने टारगेट बना लिया कि मैं पूरा करूंगा. तो आपकी वो पोजीशन जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग आपकी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो फ्यूचर पोजीशन के साथ कनेक्ट करेगी, इसका गैप दूर करेगी. अगर आप बिना सोचे समझे काम करोगे तो वो प्लानिंग नहीं होगी. So there are so many definitions regarding the planning. That is, if you fail to plan, you plan to fail. Thinking beforehand. इफ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लान करना फेल हो जाते हो तो आपकी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है. कि अगर आप प्लान ही नहीं करते किसी चीज का, किसी वर्क को करने से पहले आप सोचते नहीं हो, तो आपका जो वर्क है वो सक्सेसफुली अचीव नहीं होगा. इट मीन्स प्लानिंग जो है वो इज डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, how it is to be done, when to do it and who is to do it. तो ये हो गया प्लानिंग. थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग बिफोर हैंड. और फ्योल ने भी कहा है कि प्लानिंग इज चॉकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन. सो दीज आर द मीनिंग्स. प्लानिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि अपन टास्क को सक्सेसफुली अचीव कर सकें. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फीचर्स ऑफ प्लानिंग. फीचर्स ऑफ प्लानिंग.
सबसे पहला फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग एंड प्लानिंग बिगिंस विद द डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. कि प्लानिंग जो आप करते हो किस लिए करते हो, किसी गोल को अचीव करने के लिए. इफ द प्लानिंग इज एब्सेंट while achieving the objective, then it is not sure that you can successfully achieve the objective. So planning आपको क्या करती है, objective को achieve करने में help करती है. Planning is a primary function of management. You know very well there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So planning is the first function. After that all the rest of the 4 functions are to be worked out. In the absence of planning, no other function of management can be performed. So this is the basic function of management. पहला function है. Planning is pervasive. Pervasive means everywhere. Since the job of planning is performed by the managers at different levels working in the enterprise, it is appropriate to call it all pervasive. हर टाइप की लेवल, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, एवरी लेवल ऑफ द मैनेजर्स थिंक ऑफ व्हाट दे हैव टू डन, थिंक अबाउट देयर टास्क. तो हर टाइप लेवल का मैनेजर जो है वो अपने अपने काम की प्लानिंग बनाता है, चाहे वो टॉप लेवल का है, चाहे वो मिडल का है, चाहे वो लोअर लेवल का है. तो इसलिए क्या है, ये हर जगह पे प्लानिंग की जरूरत होती है. प्लानिंग इज परवेसिव मीन्स एवरीवेयर. नेक्स्ट, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस. सो कॉन्टिन्यूस मीन्स planning is continuous. It means plans are prepared for a particular period. Hence, there is need for a new plan after the expiry of the period. In case of any discrepancy, plans are to be revised. In case of rapid changes in the business environment, plans are to be revised. Continuous means लगातार. It means you have to keep in touch with the changes in changing environment and in selection of the best one of the best way. Whatever changes are there, you have to accept that changes, and according to that changes, what is the best way, you have to select that. So planning is continuous process से कहा जाता है. Number 5, planning is futuristic. It means planning decides the plan of action, what is to be done, how it is to be done, and where it is to be done, and by whom it is to be done. All these questions are related to future. So planning are always find the answers of the questions which are done in future. So since planning is concerned with future activities, it is called futuristic. Next, planning involves decision making. It means there are so many methods of doing one task. If you think about that task, then you search for many ways to complete that task. So you are here to find out the best way to complete the task. So it means decision making. Planning is a mental exercise. Planning is known as a mental exercise as it is related to thinking before doing something. A planner has mainly to think about the following questions: what to do, how to do it, when to do it, and who is to do it. It means planning किसी भी काम करने से पहले जो सोचते हैं उसको प्लानिंग बोलते हैं. तो जो सोचना है, किसने करना है, कब करना है, क्यों करना है, एंड कहाँ पे करना है, ये सब आपकी मेंटल एक्सरसाइज को क्रिएट करता है. तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. So we discuss about the features. Number 1 feature is planning is related to objective. Planning focuses on achieving objectives. Planning is a primary function of management. Planning is pervasive. Planning is continuous. Planning is futuristic. Involves decision making and mental exercise. Now we study about the importance.
While planning is necessary while doing the task, before doing the task. So सबसे पहला है planning provides directions. Under the process of planning, the objectives of the organization are defined in simple and clear words. Clear? The obvious outcome of this all the employees get a direction and all other efforts are focused towards a particular end. In this way, planning has an important role in the attainment of the objectives of the organization. It means planning, while doing the planning, you are clear about the ways, about the task, what you have to do, how it is to be done. तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन बताती है कि विच इज द बेस्ट वे with the help of that you have to complete the task or objectives. Planning reduces risk of uncertainty. You know very well future is uncertain. What happened tomorrow we are not obvious clear. So nobody can say with any point of certainty that what happened tomorrow. Just like COVID-19, आपको कभी ये +1 पास होते नहीं पता था कि COVID-19 आएगा जिसके कारण हमें क्लासेस लगानी पड़ेंगी, हमारे स्कूल्स ऑफ सम टाइम के लिए बंद हो जाएंगे और हमें घर बैठ के ही टीचर्स के साथ अटैचमेंट करके पढ़ना पड़ेगा। हमने सोचा ये था कि स्कूल जाएंगे, +1 में जो वीक पॉइंट्स थे हमारे, जो मार्क्स कम थे, जो हम सीरियसली नहीं पढ़े, वो हम सारे जो अपनी वीक पॉइंट्स है वो +2 में स्कूल में कवर अप करेंगे। बट दिस विल नॉट डन बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन। कल क्या होना है किसी को कुछ नहीं पता। सो इसलिए अपन ने प्लान कल के लिए करा है, बट कल वो वाला वर्कआउट प्लान करेगा कि नहीं ये कुछ नहीं पता। तो इसलिए प्लानिंग रिड्यूस, और कल हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सोच के बैठते हैं, इसलिए हम हमारी जो अनसर्टनिटी है रिस्क की वो रिड्यूस करती है। तो हम स्कूल में ना जाके घर में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टडी इज गोइंग ऑन, कोई काम नहीं रुक रहा, घर बैठे ही सारे काम हो रहे हैं, तो स्टडी इज गोइंग ऑन। तो रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी को प्लानिंग क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या होता है कि फ्यूचर एक्टिविटीज आर प्लान्ड इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। Consequently, the problems of when, where, what and why are almost decided. This puts an end to disorder and suspicion. It means ये आपकी confusions को clear करती है, सारी एक्टिविटीज और सारे डिपार्टमेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं, ये प्लानिंग हमें बहुत अच्छी तरह बताती है और ये एंड करती है इन सारी चीज़ों का, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज का। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब आप सोचते हो कि क्या करना है, कब करना है, तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे पाथ मिल जाते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव को किस पाथ से कंप्लीट करना है, तो वो आपका जो इनोवेटिव आइडियाज आपको मिलते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। दिस इज वन ऑफ द फीचर आल्सो कि नए नए आइडियाज को डिस्कवर करती है, क्योंकि हम अपना माइंडसेट चलाते हैं और जिससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है कि व्हाट आइडिया वी हैव टू अडॉप्ट। इन दिस वे प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग सिर्फ सोचना ही नहीं है कि किसने काम करना है, कब करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, ये हमें कंट्रोल भी देती है, रिजल्ट भी अचीव कराने में हेल्प करती है। स्टैंडर्ड्स आर लेड डाउन अबाउट देयर वर्क, टाइम एंड कॉस्ट अंडर कंट्रोलिंग एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क। द एक्चुअल वर्क इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड वर्क। क्या काम करना था और क्या रिजल्ट अचीव किया है, और अगर वो दोनों बराबर नहीं आए, सपोज आपने 10 में से 10 नंबर लेने थे, आपके 8 आ गए, 2 नंबर की डेविएशन आ गई, 2 नंबर कम आए, तो क्यों आए, और उस क्यों के जो रीजंस थे उसको अपन ने फाइंड आउट करके नेक्स्ट जो टास्क है उसमें वो वीक पॉइंट को दूर करना है। तो प्लानिंग सोचना काम का ही नहीं है, प्लानिंग में काम को कितना अचीव करना है, अगर अचीव नहीं हो पाया तो उसके क्या वीक
क्या डेविएशंस हैं और वो किस कारण से हुए हैं, ये सब फाइंड आउट करना भी प्लानिंग में होता है। तो प्लानिंग आपको क्या करती है, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग भी करती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस। सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंस का पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, reduces risk of uncertainty, reduce overlapping and wasteful activities, promotes innovative ideas and facilitates decision making, and establishing standard for control. These are the 6 points of importance. Next is limitations. अब प्लानिंग करने का कुछ नुकसान भी होता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन है। मे बी वो प्लानिंग हमारी फ्यूचर में काम आए या ना आए। Therefore, it is useless process. In fact, these people point towards the difficulties in the way of planning. If planning has to be successful and purposeful, the managers should be aware of these difficulties and limitations of planning. अब वो कौन कौन सी limitations और difficulties आती हैं उसको हम thoroughly study करेंगे। सबसे पहले हमारी जो limitation है वो है planning creates rigidity. Although the quality of flexibility is inherent in planning, flexibility हमने रखी हुई है अपनी planning में कि ये ना हुआ तो वो कर लेंगे। In planning, meaning thereby that in case of need changes can be brought in, but it must be admitted that only small changes are possible. हमने flexibility की स्कोप तो रखा हुआ है अपनी प्लानिंग में, बट वो एक लिमिट तक रखा हुआ है। अब हमने मशीन ले ली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो मशीन ले ली और रॉ मटेरियल ले लिया। रॉ मटेरियल तक की चेंजेस पॉसिबल है कि रॉ मटेरियल राम से ना लेके हमने शाम से ले लिया, बट मशीन को चेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो बिग चेंजेस आर नीदर पॉसिबल नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, since it is not possible to introduce desired changes according to the changed situations. The organization loses many chances of earning profits. For this limited flexibility in planning, both the internal as well as external factors are responsible. So these facts are called internal and external inflexibility. अब कौन कौन सी जो inflexibility हम रखते हैं वो है, सबसे पहले internal है। At the time of planning, the objectives of the organization, its policies, procedures, rules, programs, etc. are determined. It is very difficult to bring in changes time and again. It is known as internal inflexibility. प्रोसीजर हैं, रूल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, डिफिकल्ट होता है इनको चेंज करना। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी कि इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कॉज लिमिटेड इनफ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग, these factors are beyond the control of planners. The chief among them are political climate, economical changes, जो आपने select पढ़ा थर्ड में बिजनेस इन्वायरमेंट में डायमेंशन जो पढ़ी है आपने, जो एक्सटर्नल डायमेंशंस पढ़ी हैं उसमें सिलेक्ट आता है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड नेचुरल, टेक्निकल चेंजेस। ये सारी चेंजेस मुश्किल हो जाती हैं चेंज करनी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी कि सम टाइम हम चाहते हुए भी चेंजेस नहीं ला सकते, स्मॉल चेंजेस पॉसिबल होती हैं, लार्ज चेंजेस जो होती हैं वो, बिग चेंजेस जो होती हैं वो पॉसिबल नहीं होते प्लानिंग में। तो इसलिए प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, ये एक लिमिटेशन है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्लानिंग। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक मीन्स चेंजेबल एनवायरनमेंट। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स। सिंस फ्यूचर इज अनसर्टन एंड डायनामिक, फ्यूचर जो अनसर्टन है और डायनामिक चेंज होता रहता है। जनरली एक डार्क रूम होते हैं जैसे, वैसे एक प्लानिंग हम कर लेते हैं कि कल पता नहीं क्या हो, लेकिन हम सोचते फिर भी हैं। Generally, a longer period of planning makes it less effective. Therefore, it can be said that planning does not work in dynamic environment. For example, a company anticipated that the government was thinking about allowing the export of some particular products. With this hope, the some company started manufacturing that product.
but the government did not allow the export of the product. In this way, the wrong anticipation proved all planning wrong or incorrect. It brought loss instead of profit. कि गवर्नमेंट कंपनी ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट के बारे में बताया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, बट कंपनीज ने क्या किया, इसको अनाउंस होने से पहले ही प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, लेकिन बाद में एंड में जब डिसीजन लिया गया कंपनी ने एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया, तो इससे क्या हुआ, एंटीसिपेशन रॉन्ग गया कंपनी को, जिससे उसने प्रॉफिट कमाना था उसको उससे लॉस हो गया। तो ये डायनामिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं करती कि कल इकोनॉमिक चेंजेस क्या होनी है, वी कैन नेवर से अबाउट एग्जैक्टली व्हाट विल बी हैपेंड। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग रिड्यूसेस creativity. Under planning, all the activities connected with the attainment of objectives of the business organizations are predetermined. Consequently, as a result जो होता है, everybody works as they have been directed to do and as it has been made clear in the plans. Therefore, it checks their alternatives. It checks their incisiveness. It means that they do not think about appropriate way of discovering new alternatives. According to Terry, planning strangulates the initiative of the employees and compels them to work in the inflexible manner. Sometime जब प्लान किया था तो हमारे पास वो मेथड्स नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने प्लानिंग पर वर्कआउट किया तो एम्प्लॉइज को नए मेथड्स फाइंड आउट हो गए, बट ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू प्लानिंग वो नए मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, जो भी डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ऑब्वियसली प्लानिंग इज अ स्मॉल वर्क बट इट प्रोसेस इज रियली बिग। प्लानिंग कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, एक छोटा सा दिखने में है, लेकिन इसको जब हम कब क्यों कैसे करना है, इस पे बहुत सारा टाइम और मनी इन्वेस्ट होता है। And during this entire period, the managers remain busy in collecting a lot of information and analyzing it. In this way, when so many people remains busy in the same activity, organization is bound to face huge cost. सब लोग इसमें लगे होते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो इससे क्या होता है कि टाइम और मनी वेस्ट होता है और सक्सेस मिले ना मिले इसका कोई चांस, कुछ श्योरिटी नहीं है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जैसे ह्यूज कॉस्ट लगती है वैसे टाइम लगता है, बिकॉज ऑल आर बिजी इन थिंकिंग अबाउट द टास्क विल हाउ द टास्क विल बी कंप्लीटेड। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड इट डिलेज एक्शन। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इतना सारा सोच समझ के हमने किया कि हु विल बी डन, व्हाट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन, इस सब के करने के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि सक्सेस होगी। स्कूल में ना पढ़ा के हमने ई क्लासेस लगाई हैं, तो इससे हमें श्योरिटी नहीं है कि सब बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी आर spending our time regularly as we are going to the school, but students are serious about this or not? 90% students are serious, they are giving us the success, but 10% students are not here according to our planning. So planning does not guarantee success. Conclusion: after having studied the limitation of planning, it cannot be concluded that planning unnecessary or it is only a luxury which only big organization can afford. इतनी सारी इसकी लिमिटेशन होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग करना सही नहीं है, वो सिर्फ बिग ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वही इसकी ह्यूज कॉस्ट और नॉट गारंटी सक्सेस और इसका टाइम वेस्टेज अफोर्ड कर सकते हैं। वी आर हियर टू प्लान, whether we are small businessman, whether we are big businessman, every businessman has to plan. ड्यूरिंग कोविड-19 हमारी जो शॉप्स खुलनी थी, कल टाउन में कुछ शॉप्स खुली हैं, तो डे बिफोर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शॉप, रात को ही उन्होंने शॉप की सफाइयाँ शुरू कर दी, अपना सामान की सेटिंग की, सो दैट अर्ली मॉर्निंग जाके हम
शॉप का वर्क स्टार्ट कर सकें। तो प्लानिंग उन्होंने किया, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन है, टू गेट द टास्क सक्सेसफुली अचीव, टू गेट द गारंटी सक्सेस, कि वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो जब भी हम अपनी शॉप्स को खोलें। सो प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी वेदर वी आर अ स्मॉल शॉपकीपर और बिग शॉपकीपर, or we are a student, or we are a mother, being a mother or father, everybody is doing the plan. वो ये नहीं सोचते कि ये प्लान हमारा वर्कआउट करेगा कि नहीं, इससे हमारी गारंटी सक्सेस होगी कि नहीं। अगर ये सोचेंगे तो वो बिल्कुल श्योरली उनकी गारंटी सक्सेस नहीं होगी, लेकिन अगर सोचेंगे तो उनको सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है, फेल्योर के चांसेस कम है। Clear students? In this we studied about the planning, meaning means where we are and where we want to go, यानी प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ कनेक्ट करना, और इसके बीच में जो गैप है उसको कवर करना क्या होता है, प्लानिंग। फीचर्स हैं इसके हमने स्टडी किए, एंड इम्पोर्टेंस की हैं, लिमिटेशंस की हैं। दिस इज द माइंड मैप यू हैव टू डू। सो in this case in this PDF this is done, and have a nice day. Goodbye. In next video we are here to do the next topics of this planning chapter. Thank you.